ব্যাক টু লাইফ ভিডিও কেসে তুমি সবাই ভালো আছো, সুস্থ শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনে যত্ন নিচ্ছে, মুক্তির পথেও আছো। কালকে বার্সানাতে গিয়ে আমার এতটা বিভোর হয়ে গেছিলাম যে ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে কিছু বলতে পারি না, এত পুরো নয়েজ ছিল, সেটাও একটা কারণ। তো বার্সানার যে গলি টলিগুলো দেখছিলাম না, যে জায়গাটা মানে মন্দিরটা আছে, মন্দিরের চারিদিকে যে তোমার উঠোন মতো করা আছে, তো কোথাও মনে হচ্ছিলো যে ওখানে হয়তো রাজারানি খেলছে বা কিছু করছে। আর মিঠাই তো খুব মানে প্রসন্ন ছিল, কালকে খুব হাসি ছিল ওর মুখে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় গেছিলাম আমরা হচ্ছে ইস্কনে পুজো দিয়ে, পুজো মানে আরতি দেখে আমরা এলাম। ইস্কনে গিয়ে আমরা আরতি দেখে এলাম। এখন আমরা বেরাচ্ছি হচ্ছে, আজকে আমাদের বৃন্দাবন ছাড়ার ডেট, আজকে আগ্রা যাওয়ার কথা হচ্ছে, কেন এরা বলছে সবাই দেখবে, টাজমহল দেখবে বলে। তো মন সত্যি খুব খারাপ যে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তো রাধারানী কৃপা করুক, আবার যেন বৃন্দাবন যেন আবার ফিরে আসতে পারি এবং আবার যেন ওদেরকে দর্শন করতে পারি। ইচ্ছে ছিল সকালবেলা উঠে বাঁকে বিহারি যাওয়ার, কিন্তু এদিকে গুছানো করতে গিয়ে অনেকটাই টাইম লেগে গেলো, তো বাঁকে বিহারি আর যাওয়া হলো না। আজকে আবার মঙ্গলবার আমার আর সালে, সেই জন্য টিফিন প্যাক করে নিচ্ছি, নিরামিষ তরকারি আর রুটি, যেটা সারাদিন মানে আমি আর সান খাবো। মারা তো বাইরে খেতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই সেক্ষেত্রে। চলো এখন আমরা বেরাই, এখন যাবো আমরা টিফিন খেতে। পুরো লাগেজ গুছানো হয়ে গেছে, ওখানে আমার বাচ্চারা রেডি হয়ে গেছে সব কিছু। তো চলো বেরিয়ে যাই। আমার মিঠাই না এখানে এসে বড় হয়ে গেছে, তোমাদের দেখাই, ওদের দর্শন তো অবশ্যই করাবো। ওরা কিন্তু এসে এখানে মনে হচ্ছে আমার মিঠু রানীকে অনেক বড় দেখো। আর এই কদিন আমাদের ভিডিও এডিট করার সময় হয়নি, কেন এদিক ওদিক দর্শন গেছিলো। এবার মানে মোটামুটি পুরোটাই কভার করে নিয়েছি, পুরো জিনিস মনে হচ্ছে না আর বাদ আছে। তো যাই হোক, যেগুলো দেখার প্রয়োজন সেগুলো দেখে নিয়েছি। চলো খাওয়া দাওয়া করে আসি, তারপর এখান থেকে বেরাবো। একদম দেখা হচ্ছে আগ্রাতে। তো আমরা বৃন্দাবন ধাম ছাড়ছি এখন। তো রাধাজি কৃপা করুক, আবার আমরা আসবো, এটা আশা করে। তো বাঁকে বিহারি কি জয় 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 শ্রী রাধেশ্যাম। চলো বৃন্দাবন ছাড়া হচ্ছে, মন ওই যে বাঁকে বিহারি লাল গান করছে আমার পূজায়। তো আবার যেন ফিরে আসি, বারবার ফিরে আসি, এটাই সবার কাছে প্রার্থনা। তো চলো। बिहारी तू इतना ना करियो सिंगार, नजर लगी जाए, नजर लगी जाए, बाके बिहारी ना তুমি চিনা না কেও সিঙ্গার, নজর লगी जाए। এই ভদ্রলোকের ফোন নাম্বারটা শেয়ার করে দিই, ভদ্রলোকটা ভালো। রাধে রাধে। আর আমি এর সাথে একটা নাম্বার অ্যাড করে দিচ্ছি, যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে গাড়িতে করে যাচ্ছি বা যেটা করে আমরা বার্সানা সব জায়গায় গেছি, যেটা দিয়ে গোবর্ধন পরিক্রমার ওই জায়গাটাতে গেছি। তো যে যিনি নিয়ে গেছেন, তো তার নাম্বারটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর চেনাশোনার মধ্যে বা যতই জানতে পেরেছি তার মধ্যে কয়েকজন আসার কথা আছে রিসেন্টলি, আসার কথাই আছে, তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে। হ্যাঁ, তো কথা আছে যাদের রিসেন্টলি, তাদের জন্য এটা হেল্পফুল হয়ে যাবে। আর তাদেরকে একটা অ্যাডভাইস দেবো, যদি গোবর্ধন পরিক্রমা তোমরা যদি করতে যাও, তাহলে টোটোওয়ালাদের একটুখানি হয়তো রুডনেস তোমাদের হয়তো ফেস করতে হতে পারে। ওটা ওদের অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করতে পারে, কারণ কি ওদের মধ্যে কম্পিটিশন থাকে। তার আগে যদি তার পেছনে টোটো যদি তাদেরকে পেরিয়ে চলে যায়, তাদের একটু মন খারাপ হয়ে যায়। তো একটুখানি রুটনেস হয়তো তোমরা ফেস করতে হতে পারে, কিন্তু নিজের মতো করে সবাই এনজয় করে তোমরা ট্যুরটাকে এগিয়ে নিও। ঠিক আছে, বাই।
তো আমরা চলে এসেছি তাজমহলে। প্রথম আমাদের ঘোরার জায়গা হচ্ছে তাজমহল। তো মারা ঘুরিনি, মাদের ঘোরাতে এনেছি। এখানে ভালো ভালো আশা করি তোমাদের ভিডিও দিতে পারবো। আর ঢুকেই তো একটা ভালো লাগে আমাদের ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। সানের মন খারাপ লাগে, কিন্তু হ্যাঁ 7 ওয়ান্ডারের মধ্যে এখন একটা ওয়ান্ডার তাজমহল, সেই জন্য আমাদের দেখতেই হবে। এখানে আসার পর বৃন্দাবন ছেড়ে আসার পর আমাদের মনটা সত্যিই খারাপ, কিন্তু তবুও দেখাতে হবে, মাদেরকে দেখাতে হবে বিশেষ করে। তো 7 ওয়ান্ডারের মধ্যে যেহেতু একটা ওয়ান্ডার তাজমহল, ইন্ডিয়ার গর্ব যেহেতু, সেই জন্য এগুলো দেখতেই হবে। এইগুলো সব মসজিদের ঘর ছিল, যারা তৈরি করেছে তাজমহল তারা এখানে থাকতো আর কি। তো এইগুলো সব ওদের ঘর ছিল। কিন্তু তাজমহলে ঢুকতে গিয়ে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে। আমার ঘরের কাছে সবসময় জপের মালা থাকে, তোমরা জানো। আর কিছু হ্যাঁ চকলেট ছিল, সেগুলো তো ফেলেই তো আমার কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমার জপের মালাটা নিয়ে ঢুকতে দিল না। জপের মালাটা এখানে আমার আরেকটা যে ব্যাগটা ছিল, ব্যাগের মধ্যে সব রেখে সেগুলো জমা দিয়ে তবে আমি ঢুকতে পারলাম। তো এটা আমার একটু খারাপ লাগলো। এখন তো এটা দর্শনীয় স্থান, না হিন্দু না মুসলিম কারোর জন্য, সবার জন্য এটা। তো যেহেতু এটা দর্শন মানে কি, এটা ট্যুরিস্ট একটা প্লেস, যেখানে আমরা সবাই দেখতে আসছি তাজমহলকে, বা করতে আসছি, এক্সপ্লোর করতে আসছি জায়গাটাকে। তো সেখানে আমার মনে হয় না এই রিলিজিয়ান ব্যাপারটা রাখা উচিত ছিল, কিন্তু তাও হয়েছে, যেটা আমার খারাপ লেগেছে। কিন্তু তোমরা যদি এরকম আসো, তাহলে ঠাকুর বা কোনো মালা টালা নিয়ে এখানে আসবে না, তাহলে এন্ট্রি করতে দেবে না। বাচ্চাদের তো গাড়িতে রেখে এসেছিলাম আমি, কিন্তু আমি মালাটা নিয়ে এসেছিলাম। সামনে গেটটা থেকে যখন তুমি তাজমহলকে দেখবে, যতটা কাছে আসবে ততটা দূরে তাজমহল কিন্তু চলে যাবে। দেখো এখানে জল থাকতো, যমুনার জল নাকি এই জায়গায় থাকতো, ওখান থেকে দেখা যেত তোমার এইটা তাজমহল রিফ্লেকশনটা। দেখো এখান থেকে ফুল রিফ্লেকশনটা আসছে, কত সুন্দর বুঝতে পারছো, যে রিফ্লেকশনটা। দেখো বৃষ্টি পড়ছে টুপ টিপ 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 করে, যদি জোরে বৃষ্টি আসে গেল, রোদ আছে, সেরকম বৃষ্টি হবে না। তো শিওর একদম বৃষ্টি হবে না। ছোট ছোট পাইপ করে করা আছে, ড্রেন সিস্টেম করা আছে। মানে তখনও কাজের কত সময় ড্রেন সিস্টেম করেছিল, আমার মনে হয় তখনকার দিনেই করা, এগুলো তখনকার দিনে করা, বহু বছর আগেকার। উপরেও তো আছে, এই যে বড় বড় করা আছে, পুরো জলটা সেটা দিন উপরে, এই তো হ্যাঁ এই দেখো না ড্রেনেজ সিস্টেম করা আছে একদম, এই তো যাতে জল না জমে যায় এগুলো করা আছে, দেখতে পাচ্ছ। জলের ওইগুলো কিন্তু তোমার পেয়ে দিয়ে শ্বেত পাথর কেটে করা, এটা কালারের সাথে মানানসই তো করতে হবে। ঘোরাঘুরি ফটো তোলাতুলি অনেক কিছুই হলো। তো ঘোরাঘুরি ফটো তোলাতুলি অনেক কিছু হলো। এখন এখান থেকে বেরাচ্ছি। আসার সময় ভালো ক্লাউডি ওয়েদার ছিল, বৃষ্টি অল্প দু এক ফোঁটা পড়লো, তোমাদের দেখালাম। এখন মোটামুটি রোদ হয়ে গেছে। চলো বেরিয়ে যাই, তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। এরপর আমরা আগ্রা ফোর্ট, এটাই আমাদের ডেস্টিনেশন। চলো, শান কেমন লাগলো? আমার কি লাগলো, কেমন লাগলো, গরমে ঘাম বেরোচ্ছে, জল বেরিয়ে গেলে, যা খেলাম। এখন যাই আবার আগ্রা ফোর্ট, যদি নিয়ে যায় লোকটা। যা ঘুরে নিচ্ছি, এখানে যা টাইম লেগেছে আর নিয়ে যাবে না মনে হচ্ছে, আমি মাঝ রাস্তায়। হ্যাঁ এখানে বিশাল টাইম ওয়েস্ট হলো।
আমার মনে হলো কয়েকটা জায়গার টাইম বিশাল ওয়েস্ট করলাম নিজে, কিন্তু যাই হোক এই এক্সপিরিয়েন্স তার পাবো না। সেটাই, কবে আসবো না আসবো। এইটা হচ্ছে অফিসিয়াল ম্যাপ, তোমরা দেখে নেবে পজ করে। আমরা এখন খুব তাড়াই আছি, তোমরা দেখে নিবে। এই দেখো আগ্রা ফোর্ট চলে এসেছি আমরা, এটা গেট আগ্রা ফোর্টের। এখন পাপা যাচ্ছে টিকিট, তারপর আমরা ঢুকবো এখানে। आप सभी का आगरा किला में स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। तो ये आगरा किला है, ना कि लाल किला दिल्ली में। तो ये किला सर 2.5 किलोमीटर एरिया में बना हुआ विशाल किला है। इसका 75% एरिया भारतीय सेना से कवर्ड है। 25% एरिया आप घूमेंगे, विजिट करेंगे। तो इस किले को सबसे पहले सन 1565 में अकबर ने बनवाना शुरू किया। 8 बरस अकबर ने कराया। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। तो ये 4 राजाओं ने पूरा किला 95 बरस में कंप्लीट किया। 95 ईयर खर्चा आया 35 लाख रुपए का, आज से 500 साल पहले। ठीक है, अभी आप देखो फर्स्ट गेट, ये सेकंड है भैया, आगे थर्ड गेट है। अभी आप देखो ये 3 गेट है, ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया सर, जिगजैग। क्यों? जिससे कोई भी शत्रु डायरेक्टली स्पोर्ट में प्रवेश ना कर सके, शत्रु की स्पीड को कम करने के लिए। ये भैया नीचे लाइनिंग है, ये डिजाइन डेकोरेशन नहीं है। जब राजा लोग हाथी घोड़ों की सवारी करते थे तो उनके घोड़ों के पैर स्लिप ना हो, इसलिए ग्रिप दिया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबके? ठीक है, आप लोग ये जो श्लोक देख रहे हो ना, श्लोक, ये क्यों बनाए? कोई भी शत्रु बाहर से अंदर की ओर आता है तो उसको रोकने के लिए या गिराने के लिए सामने वाले गेट से बड़ा गोल पत्थर छोड़ा जाता था, जो काफ़ी तेज़ गति से आता था, शत्रुओं के पैरों में लगता था, शत्रु ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये देखें, दीवारों में नाली बना हुआ है, नालियाँ। यहाँ से शत्रुओं को घायल करने के लिए गर्म जल और गर्म तेल छोड़ा जाता था, हॉट ऑयल और हॉट वाटर। ये सुनेंगे आप? ये इको हो रहा है सर, ये मुगल राजाओं का सुरक्षा सिस्टम। जब शत्रु चोरी चुपके अंदर आएगा तो उनके पैरों के साउंड से जो अंदर सेना होगा वो अलर्ट हो जाएगा। घोड़ा दौड़ता है, आवाज़ करता है टक 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 टक, यही आवाज़ इको होता हुआ अंदर का सेना अलर्ट। तो किले का मतलब होता है सुरक्षा, तो ये सुरक्षा रहती थी। ठीक है, এইগুলো হচ্ছে তোমার মানে নালীগুলো, এইগুলো নালীগুলো বলছি। এইটা আমরা আগেও এসেছি কিন্তু সেটা রেকর্ড করা হয়নি, আর এই লোকটাই আমাদের গাইড করেছিল। তাই না পাপাকে আরো বললাম যে না এই লোকটাকেই না, কারণ এই লোকটা আগেবার বিশাল ভালো করে বুঝিয়েছিল। মানে মনে হচ্ছিল যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল ফিগারগুলো সব। আর এখানে সব দেখো নালীগুলো থেকে গরম তেল আর গরম জল, মানে আইডিয়া ভাবো, লোককে ঘায়াল করার জন্য করা হতো, ফেলা ফেলা হতো। देखिए आप लोग ये जो सामने वाला महल देख रहे हैं ना, इसको जहांगीरी महल कहते हैं। तो अकबर का बेटा था जहांगीर और इनका 3 नेम्स था, शेखू, सलीम, जहांगीर। ये जो मिडिल में वाइट स्टोन है, ये जहांगीर का बाथटब है, स्नान कुंड। जब जहांगीर छोटा बच्चा था तो उनका दासी लोग गुलाब जल से इस बाथटब में स्नान कराया करता था। ठीक है, ये जहांगीर को उनके मामा मान सिंह ने भेंट किया हीरे जवाहरात भरकर। अच्छा, ये एक ही पत्थर का पीस है, बीच में जॉइंट नहीं है। ये 5 फीट गहरा और 3000 केजी वेट, 3 टन सर। तो ये जो किला है ना, ये जोधा का ससुराल है। अच्छा, मायका था आमेर, जयपुर। अच्छा, ठीक है, ये ससुराल था उनका जोधा का। ठीक है, जहांगीरी महल में जाने का मेन रास्ता है। देखिए सर, ये जो ओपन एरिया है ना, यहाँ राजाओं के मनोरंजन के लिए नाच गाना होता था, मुजरा। तो राजा लोग ऊपर बनी हुई पत्थरों की छतरियों के अंदर, रानियाँ झरोकों के अंदर जो प्लस है, साइड से उनका दासी लोग कलरफुल ड्रेसों में फूल वर्षा करने के लिए खड़ा होता है।
तो ये सामने जो अंदर में वो खुली हुई आप जगह देख रहे हैं, अकबर के बेटे जहांगीर और इनकी पहली हिंदू रानी थी मानबाई। तो ये जहांगीर और मानबाई का बेडरूम था। मुगल टाइम पर दरवाज़ा नहीं, पर्दा रहता था। ये सामने सब जहांगीर का डाइनिंग हॉल होता था। इसी के ठीक बैक साइड में इनका रॉयल किचन होता था, लेकिन अभी वहाँ मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए बंद है। तो ये सामने जो गेट है सर, यहाँ जोधाबाई का हिंदू मंदिर होता था जिसमें राधा कृष्ण जी का पूजा किया जाता था, लेकिन बाद में ये मंदिर औरंगजेब के द्वारा तुड़वाकर नष्ट किया गया, डैमेज किया गया। इस किले में सर जितना भी लाल पत्थरों का वर्क है ये पूरा राजस्थानी आर्किटेक्चर है। यही डिजाइन सेम आपको राजस्थान के फ़ोटो में देखने को मिलेगा। इसका एक कारण रहता था क्योंकि मुग़ल राजाओं का जितना भी रिलेशन था वो राजस्थान की रॉयल फैमिलियों से, तो इस कारण मुग़ल राजा हिंदू कल्चर को भी यूज़ में लाया करते थे। ओके, तो ये स्पेशली जहांगीर का महल है सर। अब आपको दिखाएंगे मुग़ल राजाओं का 500 साल पुराना एसी रूम सर, जो बिना लाइट के ठंडा गर्म दोनों का वर्क किया करता था, नेचुरल एसी से। ओके, मुग़ल राजाओं का किचन रहता था, यहाँ राजाओं का सारी भोजन पकाया जाता था, लेकिन अभी यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए बंद है सर। ये जहांगीरी डाइनिंग हॉल के ठीक बैक साइड का भाग है सर। ठीक है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा पार्ट सर एसी रूम में एसी। अब पहले लाइट नहीं होता था, ये ठंडा गर्म कैसे वर्क किया करता था, इसकी छतों के ऊपर जल का टैंक रखा जाता था और उनसे सब जल को धीरे धीरे गिराया जाता था। जल गिरने के कारण दीवारों के अंदर में नमी रहता था, मॉइस्चर, नमी के कारण ये पूरा ठंडा रहता था। इसकी सब दो दीवारों के बीच में फापा है, फापा, तो जो जल टैंकों से छोड़ा जाएगा वो दीवारों के बीच में होकर नीचे तक आएगा। और राजा इसको दो प्रकार से यूज़ करेगा, गर्मियों में ठंडा जल, सर्दियों में गर्म जल, यानी नेचुरल एसी। और ये देखिए सर, ये जो डिजाइन है ना, सब डिजाइन ये पूरा गोल्ड लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, लेकिन ये अंग्रेज लोग आए सारा निकाला, लूट कर ले गए। সোনা দিয়ে পুরো কাজ করা ছিল। আর এটাও এসি রুম, পাশেরটাও এসি রুম। রোদ যেখানে নেই এখন সেখানেই ঠান্ডা। এগুলো সব গোল্ড প্লেটের ডিজাইন ছিল যেগুলো ইংরেজরা নিয়ে চলে গেছে। ये जितना भी वाइट मार्बल्स है ना, ये आगे वाला ये रेड सैंडस्टोन तो यहाँ ख़त्म होता है। अब यहाँ से आगे वाइट मार्बल्स का वर्क चलेगा। ये शाहजहाँ ने लगवाया सर, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया। तो शाहजहाँ का सर बचपन का नाम था खुर्रम, इनका पत्नी था मुमताज़, तो इनका दो बेटी था सर, रोशन आरा और जहान आरा। ये जो सामने वाला महल है ना सर, देखें, ये दुल्हन का पालकी होता है सर, डोली पालकी, उस डिज़ाइन में बना हुआ शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशन आरा का बेडरूम है सर। अब ये पालकी शेप में क्यों बनाया गया? क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि शाहजहाँ किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे, यानी लड़की वालों को अपने मेहमान या दामाद के आगे झुकना पड़ता है, ये झुकना चाहते नहीं थे, इसलिए विवाह नहीं किया। यानी बेटी पालकी में बैठी है, उनको फीलिंग हो रहा है कि मेरी बेटी पालकी में बैठी है सर। और ऊपर में सर अभी पीतल है, पहले सोना होता था, लेकिन ये अंग्रेज़ लोग आए, सारा लूटा निकाल कर ले गया। ठीक है, थोड़ा आगे आना है आपको, आगे। तो देखो, ये जो अभी आपने गेट देखा था ना, ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा होता था। इसको महमूद गजनी भी लूट कर ले गया, अपनी कंट्री गजनी। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज़ लोग आए तो अंग्रेज़ों ने गजनी में अटैक करके वही दरवाज़ा दोबारा वापस मंगाया था। ठीक है, इसको गजनी दरवाज़ा कहते हैं। ये 16.5 फुट ऊंचा है और 13.5 फीट चौड़ा है। इसको ये भी बताया जाता है कि ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। का बैक व्यू है और ठीक पीछे यमुना रिवर है। ओके, थोड़ा सा आगे आप देखो, ये फर्स्ट वाला खाई है, खाई, इसमें बाग रखा जाता था फर्स्ट वाले में। आगे वाला उसमें कुमेर, जिससे कोई भी शत्रु स्पोर्ट में डूब ना पाए। ये फर्स्ट वाले में बाग और सेकंड वाले कुमिर থাকতো। আর ওইখানে হচ্ছে তোমার তাজমহল এখানে। ওখান থেকে কতটা ছোট লাগছিল, সেখান থেকে কতটা ছোট লাগছিল, এখান থেকে কতটা দূর, এখান থেকে কতটা কাছে, একদম বড়। দূরে লাগছে, দূর থেকে কাছে। अब आप अपना दिमाग लगाइए, ये पास से छोटा दूर से बड़ा कैसे हुआ, लगाइए दिमाग। एरिया जितना बड़ा एरिया उसका सराउंडिंग में रहेगा उतना छोटा दिखेगा, जैसा चाँद दिखता है शहर में और अभी ये गाँव में। ताजमहल आपने पास से देखा तो आपकी आंखों ने सर ताजमहल, यमुना नदी, पेड़ पौधे, खुला हुआ एरिया देखा। यहाँ से देखने पर आपकी आंखों का फोकस सीधा ताज है। इसको कहते हैं सर नज़रों का धोखा।
आइज इल्यूजन भी है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, फिजिक्स है ये। फाउंटेन है ना सब, फाउंटेन। यहाँ मुगल राजाओं के समय में गुलाब जल चलाया जाता था खुशबू के लिए, सुगंध के लिए सर। नीचे जो गार्डन है सर, इसको अंगूरी बागान कहते हैं। यहाँ जहांगीर अपने खाने के लिए अंगूर का खेती किया करता था। ऊपर में जितना भी दरवाजा है सर, ये मुगल राजाओं का जो दासी लोग होता था उनका रहने का क्वार्टर्स है। इसको हरम भी कहते हैं। ये एक जोधा अकबर सीरियल आता है, उसमें भी दिखाया जाता है, लेकिन इसका शूटिंग नहीं सर, सेट बनाया है, क्योंकि शूटिंग का यहाँ परमिशन नहीं रहता तो सेट बनाकर ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं खास महल, शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम। खास महल है, शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम है। ऊपर में लोहे का रिंग्स लगा हुआ है, देखिए। इसके ठीक नीचे उनका बेड होता था, बेड को कवर करने के लिए पर्दा लगता था ऐसे। ये कॉर्नर में भी है, येलो डिज़ाइन है। ये राजाओं के समय में सोना लगा हुआ था, प्योर गोल्ड। लेकिन यहाँ भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने आक्रमण किया, आग लगाया गया, सोना पिघला, उसको भरा और यहाँ से ले। हाँ, पूरा सोना मिला। तो ये था शाहजहाँ और मुमताज़ का बेड, उनका रहने का बाड़ी है। ताजमहल में केवल कब्रें हैं भी। ओके, अब आपको दिखाएंगे शाहजहाँ का जेल, बंदी गृह। छोटी में हाँ रोशनारा, मिडिल में शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम, साइड से बड़ी में जहानारा का बेडरूम। ओके, अब आएगा शाहजहाँ का बंदी गृह। ये सामने वाला जो पार्ट है, ये इस किले का सबसे सुंदर पार्ट है। ये शाहजहाँ का बंदी गृह। तो औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का हत्या किया और अपने पिता शाहजहाँ को 8 वर्ष के लिए अंदर में नज़रबंद कर लिया। जब शाहजहाँ का उम्र काफ़ी अधिक हुआ, उनकी आंखें कमज़ोर हो गया, तो उनकी बड़ी में ने ये जो मिडिल में दीवार है ना सर, इस दीवार के ठीक बैक साइड में एक होल कराया, छेद, और उसमें एक हीरा फिट करा दिया, हीरा। और उसी हीरे में शाहजहाँ को ताजमहल का छवि नज़र आता था। तो 8 वर्ष शाहजहाँ मुमताज़ की याद में उसी हीरे में ताज की छवि को देखा करते थे। यहीं पे मुमताज़ को याद करते ही करते शाहजहाँ मर गए। बाद में ताजमहल के अंदर उनको दफनाया गया। और ये नीचे सर एक गुलाब जल के लिए फुहारा रहता था, रोज़ वाटर सर। ठीक है, थोड़ा आगे आना है आप सभी को। ये देखो सर, ये पत्थर है ना, ये वाला, ये अंगूठियों में पहना जाता है, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम। ये राशि रत्न है दीदी, इसको लोग निकालता है, डैमेज करता है, इसलिए गवर्नमेंट अंदर एंट्री बंद कर रखा है। ये फर्स्ट वाला दरवाजा, ये शाहजहाँ के टॉयलेट वॉशरूम है, बेसमेंट में बंद है। आगे वाले 2 दरवाजे वो रानी मुमताज़ का बाथरूम होता था, इसको सी स्मेल कहते हैं। लेकिन ये भी पब्लिक ने ख़राब किया, स्क्रैच किया, डैमेज किया, इसलिए बंद किया। ओके, दीवाने खास है। यहाँ मुगल राजाओं का स्पेशल विचार होता था, खास विचार। जब मौसम अच्छा होगा, यही विचार बाहर ओपन में किया जाएगा। सामने एक काला पत्थर है, कॉस्टी पत्थर है दीदी, कॉस्टी। हाँ, वहाँ सलीम यानी जहांगीर, उनका मंत्री सफ़ेद पत्थर पर। और VIP लोग भी है, नीचे ज़मीन पर बिठा ला जाता था। तो सन 1803 में बाहर से अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, कमान का गोला फेंका। एक कमान का गोला काले वाले पत्थर के बीच में लगा, वहाँ से ये टूट गया। दूसरा कमान का गोला इसी पत्थर से बाउंस होकर, और ये देखें, ये ऊपर में होल है ना, होल यहाँ लगा था कमान का गोला। और इधर ऊपर में जितना भी दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये मुगल राजाओं का दफ्तर था, दफ्तर। और नीचे वाले दरवाज़ों के अंदर एक बाज़ार लगाया जाता था, मीना बाज़ार सर। रानियों के लिए कपड़ा और ज्वेलरी वगैरह मिला करता था। जहाँ आप खड़े हो, इसी के ठीक नीचे उनका बैंक, टकसाल, RBI, पैसा बनता था सर। ओके, तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है भैया, फाइनेंशियल एरिया है। ओके, अब देखें आप लोग पास से कॉस्टी पत्थर, पास जाकर देखिए क्या करते थे। रेड वाले में मुमताज़, तो इन्होंने अपने टाइम पास के लिए नीचे से तालाब बनवाया, तालाब, उसमें मछली पाला जाता है। तो शाहजहाँ और मुमताज़ अपने टाइम पास के लिए उनका शिकार किया करते हैं। इसको मछली भवन कहते हैं। আদালতের দিকে যাচ্ছে আমাদের মহেশপুরের সিঁড়ি, এটা আমাদের ওখান থেকে স্টাইলটা চুরি করে নিয়েছে আমার। ये दियाने आम है सर, जनता दरबार। तो राजा ऊपर बैठेगा, रानी इन दोनों खिड़कियों के अंदर, नीचे उनका मंत्री। यहाँ VIP लोग सर, पब्लिक फील्ड में। अब जिस किसी पब्लिक का कोई भी शिकायत होगा, राजा के पास बुलाया जाएगा। राजा उनकी शिकायतों को सुनकर उनके साथ न्याय किया करता था। दीवाने आम सर, जनता दरबार। तो अपने बैक साइड में भी है वाइट टॉम्स है, ये मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद। ये शाहजहाँ ने बनवाया, लेकिन यहाँ आर्मी रहता है इसलिए बंद है।
ये नीचे कमान रखा हुआ है सर, नीचे कमान। ये कमान अभी 5 बरस पहले जहाँ आर्मी रहता वहाँ माटी के अंदर पाया गया था। ये ब्रिटिश टाइम का कमान है, इसको देखने के लिए यहाँ रखा हुआ है। और ये भी है नीचे एक कब्र बना हुआ है। ये एक अंग्रेज़ गवर्नर था, इसका नाम था भैया जॉन रसल कॉल्विन। तो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ भैया, सिपाही विद्रोह। उस लड़ाई में ये मर गया और अंग्रेज़ों ने इसको यहीं पर दफना दिया। पहले मुगल आया, मुगल के बाद अंग्रेज़, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट। इधर फेस करो दादा, देखो यहाँ से राजा की सीट, दोनों रानियों का सीट क्लियर नज़र आ रहा है। देखिए ये जो पिलर है ना, पिलर खंबा, ये 64 है, 64 खंबा है। कोई भी खंबा आपकी आंखों के सामने डिस्टर्ब नहीं है। 64 खंबा। हाँ देखो देखो देखो, सुनिए सुनिए। जैसे पब्लिक लोग वहाँ से आएगा, राजा का रेस्पेक्ट करेगा तब अंदर जाएगा। राजा को पब्लिक को राजा क्लियर नजर आए। ऐसा भी हुआ है, कोई भी खंबा बीच में नहीं है। सिमेट्रिकल है भैया ये, आर्किटेक्ट है ये। আশা করি তোমাদেরকে তাজমহল আর আগ্রা ফোর্টটা ভালো মতো দেখাতে পারলাম, এবং যিনি গাইড ছিলেন তিনি খুবই ভালো। তোমরা যদি কেউ আগ্রা ফোর্ট আবার ভিজিট করো, ওনাকে তোমরা হায়ার করতে পারো, উনি তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। আর সত্যি খুব ভালো লাগলো আগ্রা ফোর্টটা দেখে, সত্যি মনটা ভরে গেছে। তো আমরা এখন এসি বাসে বসে গেছি। এই আগ্রা ফোর্ট দেখে, তারপর তাজমহল দেখে সবাই খুবই টায়ার্ড একদম। মানে ওখানে জানি যে ওখানে খুব হাঁটতে হয়, তো সবাই মোটামুটি খুব টায়ার্ড। আর আমাদের যে কালকে আমাদের ট্রেন আছে আনন্দ বিহার থেকে 8:15 সময় আমাদের বোর্ড করতে হবে। তো আমরা আজকে চলে যাচ্ছি দিল্লি। আগ্রা এখান থেকে বাস আছে, ডিরেক্ট বাস, নন স্টপ একদম পুরো, যেগুলো তোমরা বলো এক্সপ্রেস বাস, সেরকম টাইপের। আমরা এসি বাস একটা নিয়েছি, তো সেই বাসটায় করে যাচ্ছি এখন। 3 ঘন্টা বললো লাগবে, এখন বাজে তোমার হচ্ছে 5:45, মানে ওই 9টা-10টা টাইমে আমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। ওখানে গিয়ে আবার হোটেল দেখতে হবে। আমার ইচ্ছা আছে আনন্দ বিহারে ওখানে হোটেল দেখার, এবার দেখি কী হয়। এখন লাস্ট পর্যন্ত এই মা এই সাইডে বসে বসে একদম পুরো টায়ার্ড, সবাই টায়ার্ড। এখানে পাপা আছে, মামারা আছে, আর এখানে কম্পাউন্ডিরা আছে, সবাই দেখতে হয়। বাস সেটাই। মায়ের মন তো ঠিক নেই, কারোরই মন ঠিক নেই। সব বৃন্দাবন ছেড়ে আসা আবার এ করা অনেক বড় একটা ব্যাপার। এদিকে আগ্রা এই দিল্লি যাওয়ার পর অত রাত্রিবেলায় আর কোথায় ব্লগ করা যাবে না, সেই হিসাবে তো আজকে ব্লগটা এখানে রাখি, আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করছি। তাহলে যতক্ষণে ফিরে আসি, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, শরীর সঙ্গে মনে যত্ন নিতে থেকো, মুক্তির পথে থেকো। লাভ ইউ।